افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اگر دنیا کائنات میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ترین جگہ ہے، اگر کوئی جگہ ہے تو وہ صرف منبر و محراب ہے، وہ منبر مصطفیٰ ہے، وہ مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں جس طرح بات کریں، جس انداز سے کریں، جس طرح جھوٹ بولیں، جس طرح کی گفتگو کریں، کوئی حدیث کے خلاف ہو، کوئی قرآن کریم کے خلاف ہو، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کے خلاف ہو، لیکن کوئی پرواہ نہیں، بس ان کو انداز گفتگو آتا ہے، ان کی خطابت اچھی ہے، وہ لوگوں کو بڑے متاثر کرتے ہیں، وہ خطیب صاحب ہیں، وہ علامہ صاحب ہیں، وہ فہامہ صاحب ہیں۔ بدقسمتی سے میں ان نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، لیکن یہاں تو بزرگ سفید ریش ایک بزرگ جو اپنے حلقہ احباب میں بڑے علامہ مشہور ہیں، اپنے حلقہ احباب میں وہ بڑے خطیب مشہور ہیں، وہ اپنے حلقہ احباب میں بڑے ہی بایا درجے کے عالم دین شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی جھوٹ آپ سنیں، ان کی گفتگو ملاحظہ کریں، ان کو سنیں، وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کو جھوٹ بتلا کر اپنے چٹکلے سنا کر لوگوں کی داد وصول کر رہے ہیں۔ ان بزرگ صاحب کی گفتگو پہلے آپ سنیں۔ میں موجود ہم حضرت طبیب کو اتحیات دا طریقہ سکھائے وہ کفی بین کفے ہے، میرا ہاتھ پیغمبر دے دوہائیں ہاتھ نے درمیان اچھا نبی سے ہاتھ ملے نن دو ہاتھ نال ملے نن تو تکبر نہ ہک ہاتھ ملے نہیں، نبی دی مخالفت کرے نہیں، جہنم وچ ویسے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں تے باب قائم کیتے، امام بخاری فرمائے ہاتھ جرے ویلے ملو دوہائیں ملائے کرو، کیویں ملے سو زور نال جرا بندہ ہک ملاوے کو بخاری علی نماز ہوئے، بخاری علی سلام نہ ہوئے۔ جی سن لیا آپ نے کس طرح یہ لوگوں کو ورگلا رہے گئے، کس طرح لوگوں کو جھوٹ پر آمادہ کر رہے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام کیا، اور دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے، جو دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتا وہ متکبر ہے، وہ مغرور ہے، اور ان پر فتوے بھی جھاڑ دیے۔ حالانکہ مولانا صاحب خود بتلا رہے ہیں، خود سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس گیا اور میں دونوں رضان ہو کر میں نے سوال پوچھا، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے التحیات سکھلائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے التحیات سکھلائی، التحیات والی دعا سکھلائی۔ نبی کریم جب دعا سکھلا رہے تھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے میرے ہاتھ کو تھام کر یوں دونوں ہاتھوں کے درمیان کر دیا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر وہ اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے دعا سمجھا رہے تھے اور مجھے وہ مسئلہ سمجھا رہے تھے، مجھے التحیات والی دعا یاد کروا رہے تھے۔ ہاتھ کیوں پکڑا؟ تاکہ کوئی اس کی توجہ کسی دوسرے شخص کی طرف مبذول نہ ہو، کسی ایسے اس کا دل و دماغ وہ اور کاموں کی طرف منتشر نہ ہو، ان کی توجہ کو صرف اس دعا کی طرف، اس مسئلے کی طرف اور اس بات کی طرف اس کو رکھنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ مولانا صاحب اس کا تعلق مصافحہ سے نہیں، اس کا تعلق سلام سے نہیں، اس کا تعلق آداب سلام سے نہیں، بلکہ آداب گفتگو تو کہہ سکتے ہیں، انداز گفتگو تو کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے جس طرح اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس کو مسائل سمجھانے کی کوشش کرے، اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح نہیں ہوتا کہ یہاں سلام مراد ہے یا مصافحہ مراد ہے یا معانقہ مراد ہے۔ اس کا تعلق تو سلام سے بالکل سرے سے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق آداب گفتگو سے ہے، اس کا تعلق انداز گفتگو سے ہے، اس کا تعلق استاد اور شاگرد سے ہے، اس کا تعلق مسائل پوچھنے والا اور مسائل بتلانے والے کے انداز میں ہے، نہ کہ یہاں سلام ہے، نہ کہ یہاں مصافحہ ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جی جھوٹ نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی، ایک نماز زمین دا بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ باقی خیال کرائے دھوکھے رہنے نہیں، دھوکھے میں سمجھے نہ تو سنے بھی سمجھے نہیں۔ یہ تو کوئی کھیسن اون والے دی نماز جلے نبی سے احرام بدھی کھڑا ہے، احرام دے احکام الگ ہے۔ احرام کرنے علاوہ حضرت نبی علیہ السلام کوئی نماز پڑھیں سر و ننگے پڑھیں، ہی حدیث دکھاؤ جا اسا منن واسطے۔
जी सुन लिया आपने किस तरह ये झूठ बोल रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कोई एक नमाज भी बगैर कपड़े के नहीं पढ़ी, बगैर सर नंगे होकर नबी करीम ने नमाज नहीं पढ़ी। और बदकिस्मती से मौलाना साहब खुद आगे खुद बता रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर इहराम में जाकर वहां तो सिरे नंगे सर नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि इहराम के अहकामात और हैं। जी मौलाना साहब, इहराम के अहकामात और हैं, नमाज के अहकामात वही हैं। पाकिस्तान में है तो भी अहकामात वही हैं, अगर बांग्लादेश में है तो भी नमाज के अहकामात वही हैं, अगर गैर मुल्क हैं तो भी नमाज के अहकामात वही हैं। जो इहराम की हालत में होते हैं, जो गैर इहराम की हालत में होते हैं। हाँ, इहराम की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया हो आप इहराम में हो, लिहाजा आप नमाज ज़ोहर को ना अदा करो क्योंकि आप इहराम में हो, आप फजर की नमाज को अदा ना करो क्योंकि आप इहराम में हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। इहराम के अहकामात और हैं, नमाज के अहकामात वही हैं जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने बतलाए हैं। अगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप इहराम की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी नंगे सर नमाज पढ़ी है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कोई एक रिवायत, कोई एक दलील, कोई एक ऐसी सही रिवायत दिखला दें जहां अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हुक्मन फरमाया हो कि नंगे सर नमाज नहीं हो सकती, तो मैं आज से मानने के लिए तैयार हूं। अगर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया हो कि नंगे सर होकर नमाज न पढ़ा करो बल्कि सर पर कपड़ा रख कर नमाज पढ़ा करो, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं इसको समझने के लिए तैयार हूं, मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। आप कोई एक हुक्मनामा दिखला दें अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि नबी करीम ने फरमाया हो कि जब भी नमाज पढ़ो तो सर पर कपड़ा रख कर नमाज पढ़ो। ये मौलाना साहब किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और तीसरा इनका झूठ, वो मुलाहिजा फरमाएं। चित्ता दे अंदर 11 दी तरावी दी रकात कोई नहीं, जेरी 11 रकात वाली हदीस है तरावी दा लफ्ज लिखो चाहो मैं लाख रुपया इनाम दसा। हदीस चाहो उन्हें अंदर तरावी दा लफ्ज होवे, सारा झूठ मारी ना। सियासता दी हदीस 11 रकात वाली तरावी है ते हरम मक्का ते मदीने वाले ओ भी क्यों खड़े पढ़दन यार, उन्हें को हदीस नजर नहीं आई। वन हरम जी सुन लिया आपने किस तरह मौलाना साहब लोगों को झूठ की दावत दे रहे हैं और लोगों को जिस तरह गुमराह कर रहे हैं। सही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को किस तरह हटा रहे हैं कि आप मुझे एक हदीस दिखा दें जिसमें 8 तरावी रकत 8 तरावीह का लफ्ज मिले, मैं मानने के लिए तैयार हूं और 1 लाख रुपया भी दूंगा। मौलाना साहब आप 1 लाख की बात करते हैं, मैं आपको डबल नहीं ट्रिपल ऑफर करता हूं, मैं आपको 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ एक हदीस दिखला दें कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने जिंदगी में कोई एक रिवायत दिखला दें कि नबी करीम ने 20 तरावीह पढ़ी हूं और 20 तरावीह पढ़ी हूं। क्यों आप नहीं दिखला सकते? क्योंकि लफ्ज तरावीह ये पूरी शरीयत में मौजूद नहीं है। लफ्ज तरावीह अरबी का लफ्ज नहीं है, लफ्ज तरावीह किसी अरब ममालिक से निकला नहीं है, लफ्ज तरावीह ये किसी और जुबान का लफ्ज है। और जो हम रमजानुल मुबारक में क़याम करते हैं वो अरबी में है, उसको क़यामुल लैल कहते हैं, उसको सलातुल लैल कहते हैं, उसको क़याम रमजान तो कहते हैं, मगर उसको तरावी नहीं कहते। अगर आप किसी एक रिवायत में दिखला दें लफ्ज तरावी तो मैं आपको 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। बाकी रह गई रिवायत सैयदना हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, वो तो आपको अभी समझ आ जाएगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो रिवायत है वो क़यामुल लैल की है, यानी रमजान हो गैर रमजान हो, रमजान में जो हम नमाज पढ़ते हैं उसको भी क़यामुल लैल कहते हैं और गैर रमजान में जो तहज्जुद पढ़ते हैं उसको भी क़यामुल लैल कहते हैं। सलातुल लैल भी वही है, क़यामुल लैल भी वही है, क़याम रमजान भी वही है। अगर यूं भी आपको बात समझ नहीं आती तो आप इस तरह करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक अमल ऐसा
ऐसा दिखा दें कि रमजानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी भी पढ़ते थे, यानी क़याम रमजान भी करते थे और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। कोई एक रिवायत ऐसी दिखा दें, मैं अमल करने के लिए तैयार हूं। आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि क़यामुल लैल भी वही है, तहज्जुद भी वही है। तहज्जुद रमजान में वो क़याम रमजान बन जाती है, और पहले पीछे रमजान के अलावा जो है उसको हम तहज्जुद कहते हैं, उसको क़यामुल लैल कहते हैं, उसको सलातुल लैल कहते हैं। वही नमाज रमजान में क़याम रमजान बन जाती है। हाँ, बाकी आपने बात की हरमैन शरीफैन की, बैतुल्लाह शरीफ की, मस्जिद नबवी की, वहां भी 20 रकात तरावी नहीं पढ़ते। वहां भी अगर आप जाकर तहकीक करें, उनके कवानीन पढ़ें, उनके ज़वाबित पढ़ें, उनके अहकामात पढ़ें, वहां भी आपको 8 रकात तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लिखी हुई भी मिलेगी और उनके फतावा जात में भी मिलेगी। बाकी बात रहेगी हरमैन शरीफैन की कि वहां 8 से ज्यादा पढ़ते हैं। भाईजान, हरमैन शरीफैन में सारी रात इबादत करते हैं, सारी रात वहां नवाफिल होती हैं, सारी रात जमात होती है, सारी रात कुरान करीम की तिलावत होती है, सारी रात इमाम साहब वहां नमाज पढ़ाते हैं। इमाम चेंज होते हैं, इमाम और आते हैं। और यह भी आपको बतलाता चलूं कि हर 8 रकत के बाद इमाम चेंज होता है। हर इमाम अपने अपने 8 रकत पढ़कर चला जाता है। लोग भी पीछे जो 8 रकत पढ़ने वाले होते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, वो 8 रकत के बाद बैठ जाते हैं। जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, वो सारी रात ठहर कर नमाज पढ़ें तो कोई उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क़यामुल लैल हो, क़याम रमजान हो, सलातुल लैल हो, ये सुन्नत तो 8 रकत है, मगर फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ये नवाफिल में शुमार है। नवाफिल आप 50 रकात भी पढ़ सकते हैं, नवाफिल 30 रकात भी पढ़ सकते हैं, नवाफिल आप सारी रात भी इबादत कर सकते हैं, नवाफिल आप 20 रकात भी पढ़ सकते हैं, नवाफिल आप जो जितनी करके पढ़ सकते हैं। मगर सुन्नत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ 8 रकात है। मगर आपने लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को चुटकुले सुना सुनाकर, लोगों को अपने अंदाज़े गुफ्तगू से, अंदाज़े बयान से, अंदाज़े खिताबत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की शरीयत से, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के फरमीन से किस तरह लोगों को दूर कर रहे हैं। आएगी मौत, आएगी, मरना है और अल्लाह के पास हाजिर होना है, कब्र में जाना है, और आप इस चीज के जवाबदेह होंगे। वो लोग भी जवाबदेह होंगे जिन्होंने सुना भी है। मौलाना साहब खुद बतलाते भी चले जा रहे हैं और अंदाजे खिताबत में वो चुटकुले सुना सुनाकर लोगों के दिमागों को खराब भी कर रहे हैं। ये लोग भी क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के सामने हाजिर होंगे। तो सोचिए और अमल कीजिए और शरीयत के मुताबिक दीन गुजारिए। ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे मौलवियों से, ऐसे अल्लामा और फहामा से अपनी जान छुड़ाइए। खुद कुरान करीम का तर्जमा पढ़िए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल शुरू कर देना हम सब की जिम्मेदारी है। आज से तहिया कर लो कि किसी भी मौलवी ने अगर कोई ऐसी गुफ्तगू की तो वहां तवज्जो करके बैठना है, गौर से सुनना है, वहां उठकर मौलाना साहब से जवाब तलबी करनी है और मौलाना साहब से सवाल करना है। यह तो आप खुद बतला रहे हैं कि उन्होंने अत्ताहियात सीखी थी और अत्ताहियात सीखते वक्त नबी करीम के 2 हाथ थे, उनका एक हाथ था। ये तो मौलाना साहब